So when I applied the formula at first, it was so smooth and buttery. It almost is like a lip balm texture and soon settles into a matte finish, which is what I wanted. But within a couple of minutes, it starts settling into the lines of your lips, making your lips feel dry and textured. Kriti Sanon changed her lip balm formula because we said so? What? The previous formula also separated after a while and had a very runny texture which did not feel moisturizing enough for my lips. And this is the new formula. I can tell it's much more thicker and has more pigment as well. I think these new shades would look great on pigmented lips. I also noticed that the lips felt very moisturized even after the pigment wore off, which is great. People don't want to accept these faults because it's their favorite celebrity brand. Deepika's product 82 Degree E, rupees 5000 per lipstick worth as rupees 50. Katrina product K Beauty, rupees 1000 per lipstick worth as rupees 5000. I think Katrina and Kriti Sanon product are too good in the market, and same goes with Sonakshi Sinha's nail product from It's Sozy. Deepika may have taken 100 crore for advertisement for her own brand and they had to cut the quality for her fees. I don't like it at all. It's a sort of cakey on the lips and I was expecting a smooth soft matte finish, not a cakey matte. After a while it felt heavy on the lips and looked very unappealing. This is the issue I have been facing since a long time with their crayon lipstick. Those stick lipstick were so dry that it chapped my lips and used to crumble after some time. I wonder why no influencer spoke about it. In this video we will talk about the recent controversy around K Beauty and Kriti Sanon's brand Hyphen. What went wrong and why people are upset. September 2025 में K Beauty ने अपना न्यू प्रोडक्ट पेन लिपस्टिक लॉन्च किया था। लॉन्च के टाइम से ही इस प्रोडक्ट को लेकर काफी हाइप क्रिएट हो गई थी क्योंकि K Beauty का नाम सुनते ही लोग नेचुरली हाई क्वालिटी और स्मूथ फॉर्मूला एक्सपेक्ट करते हैं। ब्रांड की रेपुटेशन की वजह से एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई थी, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आया, लॉन्च के कुछ टाइम बाद मिक्स और मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज आने लगे। कई लोगों ने लिपस्टिक के फॉर्मूला और परफॉर्मेंस को लेकर डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया। उस टाइम पे कई क्रिएटर्स ने इस लिपस्टिक के ऊपर रिव्यू किया था। It almost is like a lip balm texture and soon settles into a matte finish, which is what I wanted. But within a couple of minutes, it starts settling into the lines of your lips, making your lips feel dry and textured. इस क्रिएटर ने भी K Beauty की पेन लिपस्टिक को बाय किया था। इनिशियली जब लिपस्टिक अप्लाई की जाती है तब टेक्सचर काफी स्मूथ और बटरी फील होता है, ऑलमोस्ट लिप बाम जैसा। एप्लीकेशन के टाइम लिपस्टिक अच्छी तरह ग्लाइड करती है और फर्स्ट इंप्रेशन में मैट फिनिश भी काफी क्लीन और फ्लैटरिंग लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब अप्लाई करने के कुछ मिनट्स बाद ही लिपस्टिक लिप की लाइन में सेटल होना स्टार्ट कर देती है, जिससे लिप काफी ड्राई और टेक्सचर दिखने लगते हैं। और ये लिपस्टिक ऑल डे लास्टिंग क्लेम करती है, तो भी ये लिपस्टिक मिनट्स के अंदर ही लिप से उतरने लगती है। लिपस्टिक पैचेस में रिमूव होने लगती है जैसे क्रम्बल हो रही हो। कुछ जगह से कलर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है और ओवरऑल फिनिश काफी अनइवन और मेसी लगने लगता है, जो ऑनेस्टली काफी अनएक्सपेक्टेड था, स्पेशली इस प्राइस रेंज में और ब्रांड के हिसाब से। अगर ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक क्रिएटर के साथ होता तो शायद इसको एक इंडिविजुअल डिफेक्टिव प्रोडक्ट बोल के इग्नोर किया जा सकता था, क्योंकि कभी कभी एक या दो पीसेस में मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने कमेंट्स चेक किए तो दूसरे काफी लोगों का भी सेम एक्सपीरियंस था इस लिपस्टिक को लेके। मल्टीपल बायर्स ने लिपस्टिक के फॉर्मूला, ड्राइनेस और पैची रिमूवल के बारे में कंप्लेन किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिपस्टिक का शेड जेन्युइनली काफी क्यूट और अट्रैक्टिव है। कलर पे ऑफ भी फर्स्ट एप्लीकेशन में अच्छा लगता है, लेकिन रियल इशू शेड का नहीं, फॉर्मूला का है। फॉर्मूला में ही प्रॉब्लम होने की वजह से क्यूट शेड होने के बावजूद ये प्रोडक्ट गुड परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा और इसी रीजन की वजह से लोग इस लिपस्टिक से डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं और K Beauty को बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं प्राइस पॉइंट की। K Beauty का ये पेन लिपस्टिक ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आता है और ऑनेस्टली जब कोई कंज्यूमर इतना अमाउंट स्पेंड करता है तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली हाई होती हैं। सिर्फ शेड क्यूट होना काफी नहीं होता, क्वालिटी, कंफर्ट और फॉर्मूला भी इक्वली अच्छा होना चाहिए। अगर कोई 1000 की लिपस्टिक बाय कर रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट ड्राई ना हो, पैची ना लगे और एटलीस्ट अपने क्लेम के हिसाब से परफॉर्म करे। इस केस में लोगों को शेड पसंद आया लेकिन फॉर्मूला ने डिसअपॉइंट कर दिया। बाकी सेलेब ओन ब्यूटी ब्रांड के कंपैरिजन से देखे तो कैटरीना का ब्रांड K Beauty काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। ब्रांड ने टाइम के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है और काफी कंज्यूमर्स को उनके प्रोडक्ट जेन्युइनली पसंद आए हैं। K Beauty के दूसरे प्रोडक्ट जैसे उनके फाउंडेशन काफी लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं। मल्टीपल क्रिएटर्स ने उनके फाउंडेशन के पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं और उनकी ब्लेंडेबिलिटी, शेड रेंज और फिनिश के लिए अप्रिशिएट भी किया है। अभी तक K Beauty की तरफ से इस पेन लिपस्टिक के नेगेटिव रिव्यूज या फॉर्मूला इश्यूज को लेकर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स
सामने नहीं आया है। पॉसिबल है कि ब्रांड फ्यूचर में इस लिपस्टिक के फॉर्मूला को रिवाइज या इम्प्रूव करे, क्योंकि पास्ट में भी कई बार कैटरीना ने चेंज किया है फॉर्मूला को। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से कृति के ब्रांड हाइफन के रीसेंट केसेस को अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले हाइफन के पेप्टाइड लिप बाम के फॉर्मूला को लेकर भी काफी क्रिएटर्स ने ओपनली फीडबैक दिया था। Kriti Sanon changed her lip balm formula because we said so. Wow. I was quite impressed though with the color payoff. I think these new shades would look great on pigmented lips. I also noticed that the lips felt very moisturized even after the pigment wore off, which is great. A long time even when the lip balm has worn off. But I did not enjoy the smell and taste of it. It has this unpleasantly sweet smell and flavor, and the aftertaste is kind of bitter. If they fixed the smell and taste, this could be a winner of a lip balm. हाइफन की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पांस आया जहां ब्रांड ने फीडबैक को एक्नॉलेज किया। मेरे प्रीवियस कृति सनन वाले वीडियो के कमेंट में भी काफी लोगों ने ये बोला था कि उनके ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स बुरे नहीं हैं, बल्कि कुछ प्रोडक्ट जेन्युइनली काफी अच्छे हैं। ये वाला वीडियो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा क्योंकि जैसे के ब्यूटी के केस में दिख रहा है, वैसे ही कृति सनन भी अब जेन्युइनली अपने ब्रांड के प्रोडक्ट पर काम कर रही हैं। हाइफन के काफी प्रोडक्ट्स लोअर प्राइस रेंज में भी अवेलेबल हैं, जो ऑडियंस के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बन जाता है। जब कृति ने अपना लिप बाम लॉन्च किया था, तब काफी लोगों ने पैकेजिंग और इंग्रेडिएंट्स को देखकर उसे रोड का कॉपी बोलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन रियलिटी ये है कि प्राइसिंग और क्वालिटी के बीच का डिफरेंस क्लियरली विजिबल था। रोड और हाइफन के प्राइस पॉइंट और फॉर्मुलेशन सेम लेवल के नहीं है। हो सकता है कृति का इंटेंशन ये रहा हो कि लोअर प्राइस रेंज में प्रीमियम फील प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए, लेकिन फॉर्मूला की वजह से वो एक्सपेक्टेशन इनिशियली मीट नहीं हो पाई। अच्छी बात ये रही कि क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने के बजाय रिसेंटली कृति ने उस लिप बाम का फॉर्मूला भी चेंज किया। बैक टू द मेन टॉपिक, अभी रिसेंट टाइम में के ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। ये सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि कैटरीना कैफ पहली इंडियन सेलेब रही हैं जिन्होंने अपनी ब्यूटी ब्रांड को कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनाया और स्टार्टिंग से ही कस्टमर फीडबैक को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया। इसी रीजन की वजह से लोग कैटरीना को पसंद करते आए हैं। जब बाकी सेलेब ब्रांड्स फीडबैक को इग्नोर कर देते थे या सिर्फ पीआर के थ्रू हैंडल करते थे, तब के ब्यूटी ने कंपैरेटिवली ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली अप्रोच रखी और शायद इसीलिए दूसरे सेलेब ब्रांड के कंपैरिजन में कैटरीना का ब्रांड ज्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस, रियलिटी ये है कि के ब्यूटी लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए अभी भी एक्सपेंसिव है। ऑनेस्टली के ब्यूटी के प्रोडक्ट अभी भी काफी लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। फिर भी के ब्यूटी का एक मेजर प्लस पॉइंट ये रहा है कि मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। इसी वजह से प्राइस के बावजूद लोग ब्रांड को ट्राई करते हैं और रिपीट परचेजेस भी करते हैं। बस इसी रीजन की वजह से एक प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता तो डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। और अगर आपको दूसरे सेलेब ब्रांड के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, हम बना देंगे। इससे पहले भी हमने कई सेलेब ब्रांड के ऊपर डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।